Hello friends, welcome to Biology with me. This is the part 4 of Living World. We will just quickly revise all the 3 parts of Living World. So let's move towards it. Firstly, we have seen the features of living organisms, in which we have seen growth, reproduction, metabolism and conscious. So let's move towards growth. The growth is not the defining feature of living organisms, since non-living also grow, and the unicellular organisms are like the reproduction and the growth are synonymous. They occur at the same time. That's why we cannot define growth separately in unicellular organisms. Then the reproduction is also not the defining feature of living organisms, since lower organisms mainly show asexual reproduction, but we consider sexual reproduction as the true reproduction, since it gives variation. But some higher organisms like mule, worker bees and hinni, sterile human couples, they do not show reproduction. That's why we cannot say reproduction as the defining feature of living organisms. Then metabolism. Yes, metabolism is a feature of living organisms, but the metabolic reaction, a single reaction, cannot be called as the defining feature, since it can occur in living and in non-living also. We have seen as the example of test tube. Then the consciousness, response to stimulus. It is an exceptionally defining feature of living organisms. In consciousness, we have seen about the self-consciousness and about the patient in coma. So this was all the 4 points about the features of living organisms. A part is covered. Then about the underlying interactions. I have given you the example of the heart. Organ जो कोई characteristics दिखाता है वो एक tissue नहीं दिखाता, वो एक tissue दिखाता है, वो एक cell नहीं दिखाता. This is called as the underlying interactions. Then a definition of living from all the information we have collected can be self-evolving, self-replicating, self-regulating and interactive system which can respond to stimulus. लिविंग यानी हम कोई भी चीज लाए, अगर हम इसे लिविंग कहते हैं तो वो लिविंग क्या क्या कर सकता है. इट इज सेल्फ इवॉल्विंग, वो खुद से इवॉल्व कर सकता है. सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वो खुद से डिवाइड कर सकता है. सेल्फ रेगुलेटिंग, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, वो खुद से रेगुलेट करेगा ऑल द एंजाइम्स, ऑल द केमिकल्स रिक्वायर्ड. देन द इंटरैक्टिव सिस्टम, वो इंटरैक्ट करता है एनवायरनमेंट से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से. देन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि चेंज को रिस्पॉन्ड करता है. दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ लिविंग. Then a little about, we have seen the diversity on earth, like there are 7 million species on earth according to Robert May, but only 1.4 to 1.5 million species are discovered. Now we will talk about the taxonomy and systematics. We have to cover the base so that you can understand it more properly. पुराने ज़माने में जब क्लासिफिकेशन हुआ करता था तो वो बहुत बेसिक से फीचर्स ले रहे थे क्लासिफिकेशन का बेसिस. जैसे कि जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स एक कैटेगरी में, जो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स एक कैटेगरी में, जो ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल जो ऐसे खेती के काम वगैरह करते हैं, यानी कि जो हार्ड वर्किंग होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स एक कैटेगरी में. बट ये कोई बायोलॉजिकल या फिर एक कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं हुआ ना क्लासिफिकेशन का. जॉट डाउन ऑल द बेसिस, लाइक द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उस ऑर्गेनिज्म की, उसके आरबीसीज कैसे है, उसका बोन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके लीफ फॉर एग्जांपल इन द लीफ, लाइक उसका विनेशन कैसा है, वो रेटिकुलेशन है या फिर उनका जैसे कि फ्लावर पेंटामेरस है या फिर ट्राइमेरस है या फिर टेट्रामेरस है. ऐसे बहुत सारी फीचर्स हमें कंसिडर करनी होगी, सो दैट वी कैन क्लासीफाई ऑल द ऑर्गेनिजम्स मोर प्रॉपरली एंड वी कैन अंडरस्टैंड इट मोर प्रॉपरली. So for that purpose the taxonomy evolved, the systematics evolved. बहुत सिंपल भाषा में taxonomy is a process of classifying new specimen into proper taxon. So firstly, what is taxon? We will just cover the difference between taxon and category. इन जनरल कैटेगरी वी नो, लाइक हम कहते हैं कि एक कैटेगरी होगी. फॉर एग्जांपल कोई बुक्स होते हैं तो हम नॉवेल्स एक कैटेगरी में रखते हैं, उनका अच्छा नॉवेल्स. देन सेकेंडली कोई फिलोसॉफिकल बुक्स होती है, वो कैटेगरी है ना, एक पूरी फिलोसॉफी एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी में हम वो बुक्स को रखते हैं. ऐसे ही कैटेगरी जैसे कि किंगडम, हमने बोला किंगडम, तो किंगडम प्लांटी, एनिमलिया, ऐसे बहुत सारे किंगडम होंगे. ये कैसा जैसे नोवेल्स
ये कैसा एक वर्ड था जिसके अंदर हमने पूरे नॉवेल्स रखे थे, तो ये किंगडम, इसके अंदर हम पूरे किंगडम्स रखेंगे. देन लाइक द फाइलम, then the what we can say, then order. ये टर्म्स हम बाद में और ज्यादा अच्छे से समझेंगे, बट जस्ट एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता रही हूँ. ये हो गई कैटेगरी. बट टैक्सॉन में कुछ फीचर्स एसोसिएट किए गए, जैसे उसको कोई रैंक दिया गया है, उसका एक स्पेसिफिक नेम है. जैसे डॉग, अगर हमने कहाँ पर डॉग सुना तो हमारे सामने एक डॉग इमेजिन हो जाता है, बट हमने अगर किंगडम सुना तो वो एक ऐसी ब्रॉड कंसेप्ट आ जाती है कि किंगडम बहुत सारे होंगे, मतलब कोई इमेजिनेशन नहीं हो रहा है ना, कोई स्पेसिमन का इमेजिनेशन नहीं हो रहा है. बट डॉग, वी कैन क्विकली इमेजिन द डॉग, फॉर एग्जाम्पल द कैट एंड द एनिमल, प्लांट्स. जो कैटेगरी या फिर जो ऐसा टैक्सॉन होता है कि जो उसका प्रॉपर नेम होता है, उसको प्रॉपर पोजीशन होती है क्लासिफिकेशन में, जैसे कि मैमल्स, ये सब प्रॉपर नेम हो गया. मैमल्स विच प्रोड्यूस द प्रोजेनी. सो दिस इज व्हाट द टैक्सॉन. एक स्पेसिफिक उनको एक रैंक दी जाती है, एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, बट द कैटेगरी इज लाइक अ ब्रॉड टर्म. All the taxons are category, right? This is also category, this is also category, and this is also category. But all the categories cannot be the taxon. Means I will write down a statement like all taxon are category, but all category or categories are not taxon. This can be definitely asked in the MCQ question. मतलब कि जो सारे टैक्सॉन होते हैं उनको हम कैटेगरी कह सकते हैं, वो भी एक कैटेगरी इज अ ब्रॉड टर्म, राइट? बट एक किंगडम को हम टैक्सॉन नहीं कह सकते ना, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द टैक्सॉन एंड कैटेगरी. यस, एक पॉइंट, टैक्सा इज अ प्लूरल and taxon is singular form. You can get confused in this too. So हमें एक न्यू स्पेसिमन मिला है. कोई ऐसा स्पेसिमन मिलता है जो इससे पहले डिस्कवर नहीं हुआ था, अभी वो डिस्कवर हुआ है न्यूली. तो उसके स्टेप्स क्या होंगी, हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हम उसे किस ग्रुप में रखें, हम मोनोकॉट में रखें, उसे हम डाइकॉट में रखें. तो इसकी कुछ स्टेप्स होती है. First is characterization. Characterization means like the color of flower is white, the leaf is the reticulation of leaf is marginal or parallel or whatever is that. The stem, all the information, the basic information, or we can say the information we can see through the eyes. This is what the characterization. Then identification करते हैं. अगर उस characterization में ऐसा मिला तो कि वो पेंटामेरस है या फिर उसका फ्लावर का कलर वाइट है, ऐसा कुछ मिला तो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं. आई विल गिव एन एग्जांपल. पुलिस स्टेशन में कोई अगर ऐसा कोई चोर वगैरह, उनको 4-5 लोगों को ढूंढते हैं पुलिस, और हमें उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए बोलते हैं. और हम आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं, क्योंकि हमने उसे देखा था या फिर उसका वॉइस सुना था, ऐसा कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है पहले से, तो हम उसके बेसिस पे वो पर्टिकुलर चोर को हम आइडेंटिफाई करते हैं ना. तो आइडेंटिफिकेशन यानी हमारे पास बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन के वेज है. हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम, की मोनोलॉग्स, मोनोग्राफ्स, ऐसी बहुत सारी स्टेप्स है. हम वो स्टेप्स के मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस ग्रुप के पास आता है, यानी कि हम उसको किस ग्रुप में रख सकते हैं. वो फ्लावर लोटस जैसा दिखता है तो वो लोटस का कोई और स्पीसीज होगा, वो रोज जैसा दिखता है या फिर वो कोई लेगुमिनस प्लांट है, ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे आगे, जैसे हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं. देन द क्लासिफिकेशन. अभी आइडेंटिफिकेशन हो गया कि वो किसके जैसा दिख रहा है. देन हम क्लासिफिकेशन करते हैं. अगर लोटस जैसा दिख रहा है तो हम उसको लोटस के ग्रुप में रखेंगे, उस लोटस के टैक्सॉन में रखेंगे. दिस इज द क्लासिफिकेशन. देन अबाउट द नॉमेनक्लेचर, हम उसका नामकरण भी कैन से वो करते हैं. उसके कुछ रूल्स है, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट्स. सो दिस इज व्हाट
the steps in taxonomy. Now, basically the taxonomy. The proper definition of taxonomy is grouping or classification of the new organism into proper taxon on the basis of some features like the internal organization कैसा है, उसका morphology कैसा है, उसका anatomy कैसा है, ऐसे बहुत सारे यही हम इस steps में करते हैं. तो इसी को हम कहते हैं taxonomy. Systematics is not only about the classification, it also includes the phylogenetic relationship. So let's understand it properly. Taxonomy can be written taxonomy plus phylogenetic relationships. We have seen taxonomy. Taxonomy means what? A process of grouping or classifying new specimen into the taxon. But the phylogenetic relationship means evolutionary relationship. जैसे कि humans monkeys से evolve होते हैं. जैसे कि अभी तो जो reptiles है, what we can say, the lizard, snake, वो सभी रेप्टाइल्स डायनासोर्स से इवॉल्व हुए. तो ये क्या हुआ, एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हुई ना उनकी, कि वो उनसे इवॉल्व हुए हैं. और अभी रेप्टाइल्स से क्या हुआ है, बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं. सो दिस इज व्हाट वी कैन से द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. सो सिस्टमैटिक्स मीन्स अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ टैक्सॉन. यानी कि रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, ऐसा एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए कि जैसे जिससे हम एक प्रॉपर और एक इजी स्टडी कर सके ऑर्गेनिजम्स की. अगर हम एक फॉर एग्जांपल एक पूरा एनिमल या किंगडम पढ़ना है तो ऐसी इंफॉर्मेशन इधर उधर नहीं होनी चाहिए, एक सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए कि फर्स्टली मंकीज इवॉल्व हुए, देन द गोरिल्लाज, देन द ह्यूमंस. ऐसा एक सिस्टमैटिक अगर वे होगा तो हम बहुत इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं. So this was about the systematics, a systematic arrangement of taxon. एक बुक था जो लिनेयस ने लिखा था. The name was Systema Naturae. By Carolus Linnaeus. इस बुक में उसने पूरे इंफॉर्मेशन दी थी सिस्टमैटिक्स के टैक्सोनॉमी की. सो एक ऐसा एक एमसीक्यू पॉइंट बन सकता है. और एक बुक उसने लिखी थी सिस्टेमा प्लांटारम, ये भी आप याद कर सकते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट. सो दिस वाज अबाउट द टैक्सोनॉमी एंड द सिस्टमैटिक्स. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी द स्टेप्स इन टैक्सोनॉमी इन डिटेल, द कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड द नॉमेनक्लेचर.